So I welcome you all to lecture number 7 of the chapter of EMI. And in today's lecture, we are going to look further down the line to a lot of aspects. So in the last lecture, if you remember, we did coil is rotating in a uniform magnetic field. This was the derivation. I hope all of you have it in your notebook because I think we had removed screenshot last time. So I believe that everyone has written it properly in their notebook. So we were looking into coil is rotating in uniform magnetic field. So this is the schematic of a AC generator, which we did in the previous lecture. You remember we did some videos as well. We wanted to compare whatever we studied. So we saw some videos as well. So I hope you have understood till that aspect very clearly. So when I talk about coil is rotating in a uniform magnetic field, I have already taught you, but I am just saying E is nothing but E naught sine of theta, which is written in different ways. I can write it as E is equal to ban omega, if you remember this, ban omega sine of omega t. Remember, theta can also be written as omega t. We studied that this value is called as peak value. This is called as instantaneous value. And by this experiment, what you're generating is nothing but a alternating current. So we understand that this is EMF versus time. And we understand that we have generated an alternating current. If the question is asked about rod is rotating, see the difference. If it is coil rotating, what is the formula? If I say a rod is rotating, I told you to remember bicycle wheel. And I gave you a lot of formulas where I said one will be BLV by 2. One I can write as BL square omega by 2. Then we had done E is equal to B pi L square F. And of course, you can write it as E is equal to B pi L square by T. So we had different ways of writing the formula when it is related to rod is rotating. Next, we had the formula the coil is moving in a uniform magnetic field. So now it's not rotating, it's just simply moving in a uniform magnetic field. And at that time, we have to remember E is equal to either you have to use BLV or you have to use E is minus d phi by dt. Right? So whenever you are talking about a coil, we normally use E is minus d phi by dt. You can remember it as N d phi by dt also. Or E is equal to minus BLV. But this is the fundamental formula because this is where the derivation of E is equal to minus N d phi by dt was the derivation for Faraday's and Lenz's law. The next is rod is moving. So if the rod is moving, then there were two formulas. So this one is what? If the rod is moving horizontal, then we would write it as BVLV. And if the rod is moving vertical, then we would write it as E is equal to BHLV. So it depends how it is. Like if we are catching a train, or we are talking about the meter gauge of a train, we are talking about an aeroplane, that time we would use E is equal to BVLV because the motion is horizontal. So we have done this using the right hand rule. We have done this using the right hand rule, and therefore we said that we have to check and see with our right hand whether we have to use BVLV or we have to use BHLV. So these are the formulas we studied. So I hope you recollect everything. Today, before we go to some important questions, I need to do this part. This is called RMS value. इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. It is called RMS value. RMS stands for root, as in root, mean,
square value. It's called as the root mean square value. Without root mean square हम आगे जा नहीं सकते. क्यों नहीं जा सकते अभी? हम AC में, now say for example I have, let me take an example, एक बैटरी है मेरे पास, DC का बैटरी है, और मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टर रखा है जिसको आप बल्ब समझ सकते हैं. So there is a bulb here, and let's say there is, like say for example, ये 30 वोल्ट का बैटरी है, और मान लेते हैं यहाँ पे 2 एम्पियर या 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. सो से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. When I say DC, the moment I say DC, आपके दिमाग में जाना चाहिए, अच्छा DC बोला गया है, इसका मतलब है ये 30 वोल्ट फिक्स है. जब DC की बात होती है तो वोल्टेज वर्सेस टाइम में ये 30 वोल्ट फिक्स होता है और कोई वोल्टेज नहीं होता. पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने जो बैटरी यूज किया है वो डीसी वाला बैटरी है, आप एसी यूज नहीं करते वहां पे. तो कैलकुलेशन बड़ा आसान होता है. अगर मैंने आपको पूछा, से फॉर एग्जांपल रेजिस्टर मैंने दिया नहीं है, वोल्टेज और करंट आपको दिया है, तो आप यहां का पावर निकाल सकते हैं कि नहीं? पावर कोई भी सिस्टम का हमें निकालना है तो बहुत ही इजी है. पावर इज नथिंग बट, क्या होगा इसका पावर? कौन बताएगा मुझे? पावर क्या होगा? नीरज डेटा देखो बेटा. नहीं नहीं, आई एम नॉट आस्किंग डेफिनेशन. आप लोग मुझे डेफिनेशन बता रहे वर्क अपॉन टाइम. नहीं, मैं पावर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैलकुलेट कैसे करते हैं. कोई भी सिस्टम, एक रेजिस्टर दे दिया है, करंट दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, तो डीसी में आप पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? Okay, I can see people with different answers. Yes, Tejas, very good. Tejas ने बोला है just multiply V into I. Power is just VI. When you say VIT, it is heat. जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हीट बन जाता है. So यहां पर जो है पावर इज नथिंग बट व्हाट? VI. और यानी कि आपको यहां पर कितना होगा? 30 into 2 will be nothing but 60 watts. It is either I square R और V square upon R, बट मैंने आपको R ही नहीं दिया ना. सो आप सिंपली V और I मल्टीप्लाई करेंगे और आप बोलेंगे ये सिस्टम का टोटल वॉट 60 है. अब अगर मैंने सेम सिस्टम उठाया और मैंने एसी सोर्स दिया, तो ये जो आपको दिख रहा है वो एसी सोर्स है, एंड आई एम गोइंग टू कीप हम डीसी देख रहे थे अभी तक, और अगर मैं एसी सोर्स लगाओ, यानी कि आपका इमेजिनेशन क्या है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट एसी सोर्स, यानी कि ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, ऐसे सर्कल डालते हैं और साइन वेव होता है. कुछ भी मत बताना, कुछ लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, रॉन्ग. साइन वेव चाहिए, साइन वेव, यू नो. सो हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करते, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. वी वुड जस्ट टेक अ सर्कल दैट इज अ सिंबल, और फिर हम लोग ऐसा साइन वेव. समझ में आ रहा है? कुछ लोग ऐसा डाल के फिर ऐसे ऐसे डालते हैं, ये क्या है? ये कौन सा वेव है? ये गलत है. दिस इज नॉट ट्राइंगुलर वेव, ऐसा कुछ नहीं करना है. इट इज अ साइन वेव, इट इज अ प्योरली साइनोसॉइडल वेव. सो ये सिंबल होता है एसी का. सो यहां पर अगर आप एक साइन वेव का, यानी कि एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स दे देते हैं जिसको लिखा ऐसे जाता है 30 वोल्ट आरएमएस, ऐसा सम आरएमएस वैल्यू लिखा रहता है, एंड देन से यू आर कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी अगेन, यानी कि एक बल्ब के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ का करंट आरएमएस करंट है. यानी कि हर जगह पे ये आरएमएस आरएमएस लिखते हैं हर जगह पे. तो ये आरएमएस क्यों लिखते हैं? क्योंकि इस बार आपका सोर्स यानी कि सप्लाई जो है ये कुछ इस तरीके से है. यहां पर कैसा था? फिक्स था, 30 बोला तो 30 ही लेना है. ऑल्टरनेटिंग करंट में जिसको हमने ईएमएफ दिया, किसका वैल्यू लेंगे आप? अगर ये 0 है फॉर एग्जांपल, ये 5 है फॉर एग्जांपल,
ये 10 है फॉर एग्जाम्पल, ये वापस 5 हो गया, ये वापस 0 हो गया, ये माइनस व्हाट यू से -5 हो गया, ये -10 वैल्यू है यहाँ पर, ये -5 है, ये वापस 0 है। तो इसमें कौन सा वैल्यू लूं मैं अगर मुझे पावर कैलकुलेट करना है? सो हम 5 लेंगे, 10 लेंगे, 4 लेंगे, 2 लेंगे, क्या लेंगे? वी कैन नॉट टेक द 10 वैल्यू। कुछ लोग बोल रहे पीक वैल्यू ले लो, नहीं ना, हमें पूरा, हमें सिर्फ वो सेकंड्स के लिए वो 10 रहता है, सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ लम्हों के लिए वो 10 रहता है, फिर वापस वो चेंज हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं एवरेज ले लो, अगर एवरेज लेंगे ना इसका तो आंसर 0 आएगा। डू यू एग्री? 0 से अगर वो 5 जा रहा है, सो 0 + 5 + 10 + 5 -5 -10 -5, ये करके डिवाइड करेंगे, जो भी पार्ट्स है 1 2 3 4, कितना भी 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी डिवाइड करो, आंसर तो 7 8 पार्ट्स है, आंसर तो 0 ही आएगा। तो हम एवरेज भी नहीं निकाल सकते, तो ये बैड आइडिया है। एवरेज निकालेंगे तो हमको आंसर 0 आएगा, और हम 10 को ले नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ वही सेकंड के लिए है। दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट RMS वैल्यू, यानी कि ये पूरे सिग्नल का, किसका, आपके इनपुट सिग्नल का, हमें RMS मतलब सिंगल वैल्यू चाहिए। कौन सा वैल्यू लू ताकि पावर कैलकुलेट करूं? कौन सा वैल्यू लू? ये जो भी आप वेव देंगे मुझे, उसका जितना भी मैक्सिमम पीक या कुछ भी रहने दो, मान लो ये 10 वोल्ट है, तो मैं कौन सा वैल्यू लू इसमें? इसलिए RMS सीखना जरूरी है। तो वो लोग क्या करते हैं, अभी ध्यान से सुनना, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रखना। वो लोग क्या करते हैं, हर एक वैल्यू, मतलब इसका हर एक वैल्यू, यहाँ पर जो भी वैल्यू है, यहाँ पर जो भी वैल्यू है, ये सारे वैल्यूज को, ये सारे वैल्यूज को ले लेते हैं। सी द मीनिंग ऑफ इट ना, दे टेक ऑल द वैल्यूज, एवरेज तो नहीं निकाल सकते, तो वो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं उसका। समझ रहे? हर एक वैल्यू का मतलब, से फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ये फॉर एग्जाम्पल 10 है, ये वापस 5 है, ये वापस 1 है, ये वापस 0 है, फिर ये -1 है, ये -5 है, ये -10 है, ये -5 है, ये व्हाट यू से गोइंग बैक टू 0। हर एक वैल्यू, हर एक वैल्यू इस वेव का क्या करते हैं वो लोग, हर एक वैल्यू का स्क्वायर करते हैं। You are getting what I'm saying? So simply I will take 1 का square, 5 का square, 10 का square, 5 का square, 1 का square, 0 का square. इसलिए नाम क्या है, mean square. It is root mean square. मतलब पहले सबका ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया, सबका मीन ले लिया, बट उसके साथ हर एक वैल्यू की क्या की, स्क्वायर की। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो कैंसिल होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि -5 का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? सो हर एक वैल्यू, ये सिग्नल के हर एक वैल्यू को लेते हैं और उसका क्या करते हैं, मीन लेते हैं, बट साथ में स्क्वायर भी करते हैं। So it is 1 square plus 5 square plus 10 square plus 5 square plus 1 square plus 0 minus 1 square minus 5 square, ऐसे पूरे सिग्नल का लेकर, यानी कि आपको सेट ऑफ वैल्यूज आएगा, है कि नहीं, सेट ऑफ वैल्यूज होगा, सारे वैल्यूज को लेकर उसका रूट ले लेते हैं। आर यू गेटिंग? तो इसको जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, आपको डेरिवेशन नहीं है उसका, बट जस्ट टू टेल यू हाउ इट इज बेसिकली रिमूव्ड, हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। हमें पता है कि ये साइनोसॉइडल है, हमको पता है कि E इज इक्वल टू E0, जो भी पीक वैल्यू रहेगा साइन ऑफ ओमेगा टी होता है, ये इसका इक्वेशन है, ये हमें पता है। हमें पता है कि ये मैक्सिमम वैल्यू होता है, दिस इज प्लस E0 एंड दिस इज माइनस E0। वी ऑल्सो लर्न कि ये 0 होगा, ये T/4 होगा, ये T/2 होगा, एक साइकिल T होता है। तो ये लोग इसको कैसे लिखते हैं, दे विल राइट ERMS is equal to रूट ऑफ, रूट समझता है ना, रूट मीन स्क्वायर है, रूट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to T,
आप समझ रहे हैं इंटीग्रेशन क्यों लिया, क्योंकि हर एक वैल्यू को लेना है, इसका हर एक वैल्यू लेना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द वैल्यू, सो आई विल जस्ट राइट इट एज ई स्क्वायर ऑफ टी डी टी अपॉन टोटल टाइम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये इसका फॉर्मूला है। So if I give you any simple wave and I tell you I want the RMS value, ये आपको सॉल्व नहीं करना है, ये सॉल्वेबल है, आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दैट मीन्स रूट ऑफ 0 to t, और ये e क्या होता है, e नॉट साइन ओमेगा टी द होल स्क्वायर इनटू dt। जो लोग मैथ्स करना जानते हैं ये पूरा आप डिराइव कर लो, पूरा डिराइव कर लो, आपको आराम से मिलेगा ई नॉट अपॉन रूट टू। ये आंसर आता है, क्या मिल रहा है, ई नॉट अपॉन रूट टू। ये करने के बाद हर एक वैल्यू का स्क्वायर करके, हर एक वैल्यू का मीन लेके अगर आप रूट निकालते हैं, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन वी टीच स्टूडेंट्स इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, BEE बोलते हैं उसको, उसमें हम लोग यही सिखाते हैं, यही से शुरू होता है, हम लोग पूरा डिराइव करते हैं, इसमें कुछ डिराइव नहीं करना है, इसमें आप सिर्फ याद रखो कि ERMS वो वैल्यू है जो यहां तुमको लगा यूज करना पड़ेगा, यहां तुमको, ताकि तुमको वो 30 वॉट्स का अगर पावर चाहिए जो सेम है डीसी के अकॉर्डिंग, यानी कि 30 नहीं, कितना आ रहा था अपने को 60, तो अगर अपने को वो 60 वॉट्स का पावर चाहिए जो यहां हमें मिल रहा था, यू अंडरस्टैंड, वी नीड द पावर सेम। व्हाई वी नीड द पावर सेम, एनीबॉडी? क्योंकि जब हम प्लग लगा रहे हैं, अडेप्टर को प्लग लगा रहे हैं, तो हम एसी में लगा रहे हैं, बट हमारा मोबाइल चलता है डीसी पर, यानी कि ट्रांसफॉर्मर बीच में है, रेक्टिफायर है बीच में, बट हमें सेम पावर डेसिपेशन चाहिए ना। जो पावर डेसिपेशन अगर सेम नहीं रहेगा तो उड़ जाएगा तुम्हारा, शॉक लगेगा, तुम्हारा मोबाइल तो उड़ ही जाएगा। यानी कि हमें सेम पावर चाहिए, व्हेन यू आर गोइंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, इट कैनॉट चेंज, द अमाउंट ऑफ हीट कमिंग आउट फ्रॉम दिस बल्ब शुड बी सेम। तो विच वैल्यू, अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, विच वैल्यू ऑफ AC शुड आई टेक so that it will produce the same amount of heat that it was producing in a DC system। मतलब अपने मोबाइल के सर्किट में जितना हीट प्रोड्यूस होना चाहिए वो सेम ही एसी हमें देना चाहिए, मतलब वैल्यू बराबर का होना चाहिए। तो जो वैल्यू बराबर का होता है उसको इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू कहते हैं। यानी कि आरएमएस वैल्यू के काफी नाम हैं। व्हाट आर द नेम्स? तो हमने फॉर्मूला निकाला है, ई आरएमएस इज नथिंग बट ई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू, which is called as root mean square value, या इसको इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं। इफेक्टिव कौन सा मैं वैल्यू लू, इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं, या हम इसको वर्चुअल वैल्यू भी नाम दिया जाता है। सो इन मेनी बुक्स इन एनसीईआरटी एंड ऑल यू विल सी द वर्ड effective more. Otherwise, you will see the most common word that we use in electrical engineering is root mean square, which is nothing but E naught divided by root 2, जिसका एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं in the next chapter, that is alternating current। क्योंकि जब मैं करंट बोलूं या मैं आपको बोलूं कि वोल्टेज, एंड वेन एवर आई एम टॉकिंग, से फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, सब लोग बोलते हैं 230 वोल्ट। कैसे तुमने 230 मान लिया, जबकि तुमको पता है कि तुम्हारा प्लग पॉइंट तो एसी है। तो 230 तुम्हारा आरएमएस वैल्यू तुम बोल रहे हो, तुम्हें पता नहीं था, बस तुम जो भी 230 बोल रहे थे वो सारे वैल्यूज कौन से वैल्यूज हैं, जिसको हम इफेक्टिव वैल्यू कहते हैं, वर्चुअल वैल्यू कहते हैं, या हम उसको सिंपली आरएमएस वैल्यू कहते हैं। सो अगर मैंने करंट भी पूछा, देन यू विल से इट इज आई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू। सो जो हम एकदम सिंपली बोल देते हैं वो सब आरएमएस वैल्यूज हैं। दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करने वाले हैं कि अभी हमारे पास 3 टर्म्स है आपके सामने, यानी कि E है, E नॉट है और E आरएमएस है। यानी कि आपके दिमाग में 3 चीजें अभी खेल रचाएगी। E is instantaneous value, that is E naught sin omega t। E naught is maximum value, जो कांस्टेंट रहता है।
है कि नहीं? क्योंकि हम जो साइनसॉइडल वेव की बात करते हैं वो कितने पीक पर जाता है, ये कौन डिसाइड करता है? ई नॉट डिसाइड करता है। और ये जो तीसरा वाला है दैट इज ई आर एम एस, जो हमें सारे कैलकुलेशन में यूज करना है, इट इज द क्यूमुलेटिव, या आई शुड से इट इज द रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ द फुल सिग्नल। एक पूरे सिग्नल का, एक पूरे वेवफॉर्म का सिंगल वैल्यू कौन सा है? आरएमएस वैल्यू। ई क्या है? इंस्टैंटेनियस है, हर बार चेंज होगा। तो जब भी आप इंस्टैंटेनियस वैल्यू लिखते हैं तो आप स्मॉल आई या स्मॉल ई का यूज करेंगे। जब भी आप आरएमएस वैल्यू यूज करते हैं आप ई को थोड़ा बड़ा लिखेंगे या कैपिटल आई करंट के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये वैल्यूज जो है हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम इंस्टैंटेनियस और पीक वैल्यू का यूज नहीं करते हैं। So this is something that I really want you to imagine. So यहाँ पर मैंने सिर्फ वो DC और AC का फर्क आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बताया है। So we have a DC value. Suppose मैंने कहा ERMS, देखो यहाँ पर वोल्टेज कितना है? 240 240 है। तो इस वेवफॉर्म में आप देखेंगे ERMS अपना क्या होता है? E नॉट डिवाइडेड बाय √2। You know what is 1 by √2? मैथमेटिक्स कहती है 1 by √2 is 0.707 of E naught. I hope you know this. 1 upon √2, जो 1 upon 1.414 है, आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, 1 by √2 is 0.707। इसका मतलब है परसेंटेज में ये 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू रहता है। यानी कि अगर आपका पूरा वेवफॉर्म ई नॉट है तो उसका 70%, ये आपका पूरा पीक वैल्यू है, उसका 70% जो होता है वो आरएमएस वैल्यू के टर्म्स में आता है। तो जो डीसी का 240 डायरेक्ट दिखाई देता है वही एसी के पीक वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है ये, और उसको हम क्या कहते हैं? आरएमएस वैल्यू। सो इसको निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। सो व्हाट वैल्यू ऑफ डीसी is an equivalent value of AC, that value is called as a RMS value, क्योंकि पावर दोनों तरफ सेम होना चाहिए। You will understand with time. So here I have written the definition कि the term RMS stands for root mean square, है कि नहीं? Because what is most of the books में ये word दिखाई देगा आपको, they will always write this word that the amount of AC power that produces the same heating effect as that of an equivalent DC power. So what is RMS value? It is the square root of the mean average value of squared function of instantaneous values. So ये अगर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, अगर ये वेव है, अगर ये इतना सिग्नल है, आपको सारे वैल्यूज मतलब V1, V2, V3, V4, V5 सबका स्क्वायर लेना है डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पार्ट्स यू डिवाइडेड इट। तो कोई भी सिग्नल रहने दो, कैसा भी सिग्नल मैं दूं, उसको डिवाइड करके उसका स्क्वायर निकाल के आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू आंसर के तौर पे मिलेगा। बिकॉज जरूरी नहीं है ना कि वेव हमेशा साइनसॉइडली दिखना चाहिए। इट कैन लुक, ये वाला आपने देखा रहेगा रेक्टिफायर में, when you are doing rectifier तो आपका सिग्नल कुछ ऐसा दिखता है, it looks something like a half wave rectifier. So if it's a half wave rectifier then the value will be different. You must have seen that we have different kinds of signals. Have you seen signals like this? These are triangular, है कि नहीं? Then you must have seen signals which are square, तो आपको square pulses भी होना चाहिए। तो कैसा भी मैं वेवफॉर्म लूं, मैं उसका रूट मीन स्क्वायर निकाल सकती हूँ। This is in fact a very very important part of the chapter. Is this clear to everybody? Because then only I can go forward with the questions. क्योंकि रूट मीन स्क्वायर के बिना हम आगे क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। So you should know the difference of what is root mean square, which is also called as, मैंने आपको नाम दिया, don't remember this name, it is RMS or virtual, or it is called as effective. RMS और वर्चुअल और इफेक्टिव, क्या क्या बोला? फॉर्मूला लिख लो पहले। आप RMS और इफेक्टिव और वर्चुअल लिखो और फॉर्मूला लिख दो पहले। प्लीज राइट द फॉर्मूला एवरीबॉडी।
पहले फॉर्मूला लिख दो। Have you written the formula? Do you have any doubt in this now? Because पहले तो ये clear होना चाहिए. Because then only I can go forward. So whenever we are talking about कोई भी value at home, when we are looking at the readings of everything, we are not looking at peak value. We are not looking at instantaneous value. We are basically looking at, we are always looking at, we are always looking at the effective value. We are always looking at the RMS value. Yeah, so I will put properly in the PowerPoint. This is just for my explanation sake, and then you can refer to that PDF. Okay. So I hope this much is understood. पहले meaning समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. So you can refer to it. मैं थोड़ा arrange करके आपको PowerPoint भेजूंगी. Okay. So I hope अभी तीन है आपके पास, E है, E naught है और ERMS है. So now let's come to something which is going to use it. So say for example ऐसे questions आपको दिखाई देंगे. You know, ये questions आपके book में होंगे. I hope everyone has the MCQ solving book. So you have a sinusoidal voltage of amplitude 5 volt. So जैसे ही मैंने ये sentence लिया, आपका दिमाग चलना चाहिए. It is written, it's a sinusoidal voltage of amplitude 5 volt. मतलब it is a sinusoidal voltage of amplitude 5 volt. मतलब ये कौन सा वैल्यू है? मतलब ये कौन सा वैल्यू है? इसका मतलब है जो दिया गया है, इट इज द मैक्सिमम और द पीक वैल्यू विच इज गिवन टू यू एस 5 वोल्ट. एम्पलीट्यूड हमेशा पीक वैल्यू होता है. उन्होंने कहा है कि इट इज देयर इज अ रेजिस्टर विच इज इक्वल टू 500 ohms. देयर इज अ रेजिस्टर विच इज इक्वल टू 500 ohms. और हमें पूछा है कि फाइंड आई आर एम एस. आई आर एम एस कितना है? Now, if I say everyone knows what is resistance, resistance is voltage upon current. So I can say it is voltage upon current. But ये दोनों peak values होंगे. We can't keep one peak value, one RMS value. So we can find I naught. What is I naught? Because R will be V upon I. So we can find out what is I naught. I naught is E naught upon R, which is going to be 5 divided by 500. Right? So how much is 5 divided by 500? You will get 1 upon 100. Now, once you know I naught, can I find IRMS? Because what is IRMS? IRMS is nothing but I naught divided by root 2. अगर हमें peak value पता है तो ही हम RMS value निकाल सकते हैं. That means this is going to be what? It is going to be 100 divided by root 2. What is it going to be? 100 divided by root 2. Got it? अब ये 100 divided by root 2 जो है, can I write it as 50 into 2 numerator? न्यूमरेटर को 50 into 2 लिख सकते हैं, जिसको हम √2 into √2 लिख सकते हैं अपॉन √2. तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा. Got it?
So what we are getting here is nothing but 50 root 2. I think there is some sort of a mistake in the values. Let me just check. So they must have made some mistakes. So I'm just checking. So you आपको भी correct करने को फिर बाद में problem नहीं होगा. ओके ओके गॉट इट. तो आंसर जो है, नो नो लिसन, आंसर जो है मिली एम्पियर में है. किसमें आंसर? मिली एम्पियर में है. तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिखेंगे. सो इफ 50 रूट 2 इज नॉट देयर, इसका मतलब अगर आप आंसर्स देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, आई डिड नॉट सी दिस, अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सब कुछ किसमें है? किसमें है? ऑप्शंस किसमें है? मिली एम्पियर में है. यानी कि ये जो करंट आपको मिला है विच इज 1/100, व्हाट इज 1/100? 10⁻²? एम्पियर. 10⁻² ampere. If I want to write this in milliampere, I have to multiply and divide by 10. So can I say this is equal to 10 milliampere? I hope everyone is understanding. 1/100 को हम 10 to the power -2 लिख सकते हैं, which is equal to 10 milliampere. और अगर ऐसा हम लिखते हैं, then RMS value निकाल सकते हैं. So you have to check the unit. The unit was in milliampere. Hence, it is I RMS is equal to I naught divided by root 2 in milliampere. So it is 10 divided by root 2 in milliampere, and hence the option is option B. Is this understood, children? How we started? हमें peak value, amplitude का value जो होता है वो peak value होता है, because this is the amplitude of the signal. Resistance दिया था, it is 500 ohms, so it's basically an electrical circuit with a supply and with some resistor, and they're asking us what is the current that is flowing this. So हमें resistance दिया है, उन्होंने इसका peak value दिया है, और हमको पूछा है कि इसमें से जाने वाला current कितना है in RMS. That is what the question means. Did you understand this? How to apply it? Can you please take this down or take a screenshot, because I will, it may not be there when I make it into a PDF. So can you please write it down for a minute? पहला question है तो लिख लो. No, I have multiplied and divided by 10. So it is 10 into 10⁻². 1/100 का मतलब होता है न्यूमरेटर में वो 10⁻² एम्पियर होगा ना मानव. फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10⁻² का -3 हो जाएगा, एंड -3 क्या होता है? मिली. So 1/100 is equivalent to 10 milliampere. Clear? Completed? So have you understood how to apply it? So whenever they ask you RMS value, we have to find in terms of peak value and then divide by √2.
Can I go ahead? Anybody has a doubt in this particular question? Any doubt? Because now these are the kind of questions you'll face in EMI. The theory is simple, but the numericals we have to think. फर्स्ट स्टेप अंकित कौन सा वाला बेटा? ये वाला ई नॉट तो दिया है, एम्पलीट्यूड है ना, तो एम्पलीट्यूड बोला तो हाइट, हाइट ऑफ द वेवफॉर्म होता है, वो कितने ऊंचाई तक गया, तो वो जो कितनी ऊंचाई तक गया वो आपका ई नॉट है, जिसको हम मैक्सिमम या पीक वैल्यू के नाम से जानते हैं, तो वो हमारा 5 वोल्ट होगा। गॉट इट? और रेजिस्टेंस दिया है, सो इट्स बेसिकली अ सर्किट जिसमें रेजिस्टर है, आई नॉट वाला रेजिस्टर आर, वी इज इक्वल टू आई आर, V is equal to IR. So R क्या होता है? V upon I. So जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में V upon I लिखते हैं, वही चीज हम यहाँ पर V के जगह पे E नॉट लिखते हैं और I के जगह पे हम I नॉट लिखते हैं। गॉट इट अंकित? कुछ भी नहीं है बेटा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। फिजिक्स डरावना लगता है कभी कभी, बट इट्स जस्ट V upon I विच आई कैन राइट हियर। V अपॉन आई के बदले हम EMI में E नॉट यूज करते हैं और I के बदले हम I नॉट लिख रहे हैं, बस वो दिखता है ऐसा है, बस इट्स नॉट डिफिकल्ट। ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विथ योर परमिशन एवरीबॉडी? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज? Okay, so each question will teach you something or the other. Now this is very simple, everyone can do this question. This question says if the effective value of AC, what is the meaning of effective value? What is the meaning of effective value of AC? The moment I say effective value, दिमाग का एकदम बत्ती on. Effective is root mean square value of an alternating current. That means this is nothing but equal to 10. मतलब ERMS value of the, चेक करने का कि ERMS दिया है क्या? क्या ERMS दिया है? कोई मुझे देखते कौन जागा हुआ है। Is this ERMS value? Yes or no? क्या ये ERMS है या IRMS है? Okay, नीरज says no. Rest are saying yes. जाग जाओ. See the unit. See the unit. 10 क्या है? 10 एम्पियर है. एम्पियर है. So this is not E. This is I. This is IRMS. Very good. So ये IRMS आपको दिया है, करंट दिया है, which is 10 ampere, and they're asking you to find peak value of the current. What is peak value? छोटा. कैसे निकालेंगे छोटे को? IRMS का फॉर्मूला क्या है? IRMS is equal to I naught divided by √2. पीक वैल्यू ऑफ करंट ही पूछा है, ई को भूल जाओ, आई पूछा है। आई बोले कि ई बोले, मैंने आपको बोला ना कि दोनों को डिवाइड बाय √2 ही करना है। सो व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट इज गोइंग टू बी √2 इंटू IRMS। √2 कितना होता है? √2 इज 1.414 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसलिए आई नॉट बिकम्स 14.14 amperes. Clear guys? It's very simple. It's not at all difficult. It's absolutely simple. It's IRMS is I naught by √2. इतना ही याद रखना है। आज सोते टाइम 2 गोली खा के सोना है। ERMS is E naught by √2 and IRMS is I naught by √2. कुछ भी डिवाइड बाय, कोई भी पीक वैल्यू को डिवाइड बाय √2 करते हैं तो RMS वैल्यू होता है। उसका कोई कैलकुलेशन, कोई चीज याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 फॉर्मूला। इट्स लाइक 2 मेडिसिन, 2 टैबलेट्स लेना है आज। क्लियर? फिजिक्स वाला ध्रुविन ओझा, फिजिक्स वाला गोली लेना है। यस, दैट इज I नॉट बाई √2 एंड E नॉट बाई √2. So will you be able to think about it now? Let me see. सोचेंगे पक्का? गोली खा लो,
फिजिक्स इज फिजिक्स, इतना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा तुमको, इतना खतरनाक, बाहर से अंदर से कुछ भी नहीं। इट्स वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट यार। सुबह उठ के ही बोलना आई लव फिजिक्स, आई जस्ट लव दिस सब्जेक्ट, यू नो यू हैव टू डू सम एफर्मेशन समटाइम्स। सुबह उठ के ही बोलना है अरे मेरे को फिजिक्स इतना अच्छा लगता है, तो जितना फिजिक्स पढ़ेंगे सब डाइजेस्ट हो जाएगा। सुबह उठ के आई लव फिजिक्स, आई जस्ट लव इट, फिजिक्स इज लाइफ, यू नो इट्स अमेजिंग। सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Ready, steady, are you ready guys? अभी सोचने की बारी आ रही है, इसलिए I'm asking you whether you're ready. फिर लोग मुझे मैसेज करेंगे मैम मैंने ये ट्राई किया बुक में, मुझे नहीं आ रहा है, तो इसलिए तुम पहले सुन लो, ठीक है। मुझे बहुत सारे कहानियां लोग भेजते हैं व्हाट्सएप पे, मैं एक दिन उसका कुछ का फोटो निकाल के साथ में डालूंगी। ओके, साइंस स्टूडेंट स्टोरीज आई कॉल इट। ओके, चलो। नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इसको जितना इंपॉर्टेंट मार्क करना है वो उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। द ईएमएफ इन एन एसी सर्किट एट एनी इंस्टेंट कितना है? तो अपने को दिया गया है ई इज 200 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6। यू नो ये जाना पहचाना लग रहा है कि नहीं? आपने किया रहेगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आपने कुछ किया रहेगा ऐसा, जाना पहचाना लग रहा है ना ये जो भी है। इट लुक्स लाइक अ स्टैंडर्ड इक्वेशन। कैन आई कंपेयर इट टू e इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव मतलब यहाँ एंगल, सो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज आई राइट इट एज थीटा, इट इज एंगल बेसिकली हियर, ठीक है। तो वो ओमेगा टी भी थीटा है ना, इससे हम लोग फाइव यूज करते हैं, फाइव इज एन एंगल हियर। नाउ व्हेन आई रोट दिस इक्वेशन, उसके बिलो मैंने लिखा और मैंने आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द वोल्टेज, व्हाट इज द पीक वैल्यू, what is the peak value? Yes Lakshita, it is very good. She says it's the equation of displacement. I'm coming to that Lakshita. तो यहां पर मैंने आपको पूछ लिया कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आप यहां देखेंगे आप बोलेंगे 200 आपका पीक वैल्यू है, यानी कि आपका एम्पलीट्यूड 200 है, उतने हाइट पे जा रहा है, 200 के हाइट पे है, मतलब आपका जो वेव फॉर्म है ना वो कितने के हाइट पे जा रहा है, 200 के, इसका जो पूरा 200 है उसका पीक वैल्यू। So E is 200 sine omega t plus 5. It's a standard equation, Shaurya. Compare कर रहे बेटा, E naught is 200. Compare कर रहे, दो जो हमें दिया है उसमें वैल्यूज डाला है ना, और जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये ब्लैक में लिखा है, और जो डेटा में दिया है वो रेड में है, तो हम कंपेयर कर रहे हैं। ई नॉट नीचे जो है उसके पोजीशन पे कौन है, 200 है। जैसे अगर मैं पूछूं ओमेगा क्या है, व्हाट इज ओमेगा, कौन बताएगा मुझे, ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, इस इक्वेशन में ओमेगा क्या है, वैल्यू क्या है? सब लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, हे भगवान, मुझे पता है ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। आई एम आस्किंग यू विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, इट इज 100 पाई। द फॉल्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, पूछा कि ओमेगा क्या है, पूरा बैच लिख रहा है एंगुलर वेलोसिटी, है भगवान क्या होगा। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बच्चा लोग, एप्लीकेशन क्वेश्चन में ओमेगा को देखो, ओमेगा क्या है, तो अगर किसी ने पूछा कि भाई ओमेगा क्या है, तो वो बंदा बोलना चाहिए 100 पाई, ना कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसी ने तो डेफिनेशन भी लिख दिया चैट बॉक्स में कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हे भगवान क्या होगा इस देश का पता नहीं, बट ओमेगा इज 100 पाई। हाँ यही आप ना 10 साल आप रट रहे थे ना स्कूल में, रटा रहे थे वो लोग तुमको एक एक डेफिनेशन, तो तुम रट रट के ना तुम ऐसे हो गए हो। यस,
कुछ भी पूछो तो डेफिनेशन याद आता है ना, कुछ भी पूछो। अभी मैंने आरएमएस पूछा तो मीनिंग छोड़ो, लोग डेफिनेशन का तुम लोग सब चतुर बनने की कोशिश कर रहे हो यार। थ्री इडियट्स देखा है कि नहीं? चतुर मत बनो, समझा? चतुर सब डेफिनेशन बाय हार्ट करके रखते कुछ लोग। एनीवे, सो ओमेगा इज नथिंग बट 100 पाई। ओके, सो एवरीवन, यस, रांचो बनो, यस, वेरी गुड। तो 200 इज ई नॉट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, अभी तो एक इक्वेशन में ही खेल रहे हैं, क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द टाइम व्हेन द वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सुना जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या? सुना जैसा लग रहा है, आई डोंट नो। द टाइम व्हेन द वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। वेरी गुड आदित्य, आदित्य को याद आया, तेजस को याद आया। ओके, थिंक थिंक, सोचने दो। I'll tell you how to do it both ways. Okay, एक तरीके का सॉल्यूशन देखो। I'll tell you both the ways as you're thinking. ये सिग्नल मतलब E मैक्सिमम कब होगा? When will E become equal to E naught? Who will tell me? E equal to E naught कब बनेगा? When will E become equal to E naught? Anybody who can think. ये जो इक्वेशन है ना, E is equal to 200 sin 100 pi t, ये कब बनेगा? E equal to E naught कब बनेगा? जब साइन के अंदर वाला 90 होगा। एग्रीड? अगर साइन 91 हो गया तो E 200 हो गया। सिंपल कैलकुलेशन। अगर साइन 1 हो गया, साइन का जो वैल्यू है वो 1 हो गया, इसका मतलब E 200 हो गया। फिर हम बोल सकते हैं कि द E हैज बिकम इक्वल टू E नॉट। तो हम बोल सकते हैं द वोल्टेज हैज बिकम मैक्सिमम। डू यू एग्री? इसका मतलब है हमारे साइन के अंदर वाला जो पूरा है, व्हाट इज अंदर में क्या क्या है? 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6। कैन आई से इट इज बिकम इक्वल टू पाई बाई 2? अगर हमारा जो साइन के अंदर है, इफ इट बिकम्स इक्वल टू पाई बाई 2, देन आई कैन से दैट ई इज इक्वल टू ई नॉट। प्रबोदिता, क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द टाइम व्हेन द वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम? ये दिख रहा है बेटा? वोल्टेज मतलब स्मॉल ई, बिकम्स मैक्सिमम मतलब पीक वैल्यू, मतलब ई, इसका मतलब है ई नॉट कब होगा? ये वाले इक्वेशन में जो उन्होंने दिया है, E 200 कब होगा? E 200 तब होगा जब साइन के अंदर वाला पूरा टर्म पाई बाई 2 हो जाएगा। 100 पाई टी प्लस पाई बाई 6 जब पाई बाई 2 होगा, तो हम बोल सकते हैं कि E जो है 200 है। गॉट इट प्रबोदिता? तो यहां पर 100 पाई टी कितना हो जाएगा? 90 माइनस पाई बाई 6 कितना होता है? 90 माइनस पाई बाई 6 कितना होता है? पाई बाई 3 होता है। एवरीवन एग्रीज? 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 60, 60 is pi by 3. Pi will get cancelled. Pi will get cancelled. How much is t equal to? How much is t equal to? 1 upon 300 seconds पर ये possible है. Which option? 1 upon 300 seconds पर ये possible है. Which option? D option. Any doubt in this? I would like you to take this down because these are important questions.
90 माइनस 60 किया शुभम मैंने। इधर राइट साइड पे आपको पाई बाय 2 दिख रहा है, दिस इज 90, पाई बाय 6 इज 30, सो 90 माइनस 30 is 60, 60 is written as pi by 3. Yes, Ikra, 1 minute. I'll do it. Yeah, 1 minute. ओके, एक और बार जिनको नहीं समझा है या जिनको थोड़ा डाउट है देख लो। E इज इक्वल टू 200 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 6 क्वेश्चन में दिया है, जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं विद एन इक्वेशन E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस सम एंगल इज देयर। सो क्वेश्चन पूछा गया कि E इक्वल टू E नॉट कब होगा, वोल्टेज कब मैक्सिमम होगा, मतलब स्मॉल ई नॉट कब होगा, स्मॉल ई नॉट तब होगा जब साइन के अंदर का एंगल पाई बाय 2 से मैच होगा। सो हमने क्या किया है, जो भी अंदर है इज इक्वल टू 90 डाल दिया हमने, तो उससे हमें जो टाइम मिलता है वही आपका परफेक्ट आंसर है। यू वांट अनदर मेथड, डू यू वांट अनदर मेथड, सेम ही आएगा बट डू यू वांट अनदर मेथड? जस्ट फिनिश दिस ऑफ, आई कैन शो यू वन मोर वे द सेम आंसर विल कम। वो भी एक बहुत इजी है, I'll give you that also, बहुत easy है। Have you finished taking this? I need to rub the board. No, it is not lengthy, assure you. I'll tell you how to do it. वो बहुत easy है। तो ये निकाल दो, दोनों तरफ सोच सकते हैं ना। Can I clear it? Okay. Screenshot निकाल लो। There's another way of doing it. देखो कैसे करते हैं, बहुत easy है, वो भी बहुत easy है। ये ले लो, ये पूरा इक्वेशन ले लो, क्या बोला है, द टाइम व्हेन द वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज, ये वाला बिकम्स मैक्सिमम, यानी कि ये जो E है जिसको तुमने क्या लिखा, 200 साइन 100 पाई टी प्लस 5/6। क्वेश्चन पूछा है कि E कब मैक्सिमम होगा, तो कहना है इसे E जब E नॉट होगा, अरे E जब E नॉट होगा, और ये वाला क्या है आपका, E नॉट ही है ना, ये क्या है, E नॉट ही है। पूछा गया है कि E नॉट कब होगा, तो E के जगह पे E नॉट लिख लो। E जो भी होगा, अगर मैंने कहा कि व्हाट इज द टाइम टेकन द वोल्टेज बिकम्स हाफ, तो E के जगह पे E नॉट बाई 2 लिख लेना, समझ रहे हैं। तो E नॉट कब होगा, सेम इक्वेशन को रिपीट करो, 100 पाई टी प्लस 5/6, E नॉट कैंसिल, आएगा वही, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 5/6। सो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 100 पाई टी प्लस 5/6। सॉरी, साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है, पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 100 पाई टी प्लस पाई बाई सिक्स मतलब 30, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 इज पाई बाई 3 इज इक्वल टू 100 पाई टी, पाई पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू 1/300। यहां पर भी आपको सेम ही आंसर आएगा। समझा मैंने क्या किया? अगर वो कंडीशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर उन्होंने लिखा है कि द टाइम व्हेन द
वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम, तो वोल्टेज मतलब ई की बात हो रही है ना, पूरा ध्यान तो ई पर है, तो ई को ई नॉट डाल दो। गॉट इट? लिया ना बेटा सेकंड स्टेप में? कौन सा? शौर्य, सारे स्टेप में ई 200 इज ई नॉट होली ना बेटा। कहाँ कंफ्यूज हो रहा है आपको? आप पोजीशन को भूलो मत, जो लेफ्ट साइड पे है ये इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है, जो इक्वल टू के बाद आता है वो पीक वैल्यू है। जो लेफ्ट साइड पे है वो आपका इंस्टैन्टेनियस वैल्यू है। सो जब वो बोल रहे कि व्हाट इज द टाइम व्हेन वोल्टेज बिकम्स मैक्सिमम, इसका मतलब वो पूछ रहे हैं कि ई ई नॉट कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, ई ई नॉट कब होगा। फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार, यानी कि ऐसा पहली बार मानव जीरो से चालू होके पहली बार वो मैक्सिमम कब पहुंचा, साइनसॉइडल है ना, तो यहां से लेके यहां तक पहली बार कब पहुंचा, दैट इज द मीनिंग। क्योंकि बार बार हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम हो रहा है, सेकंड टाइम हो रहा है, ये तो कंटिन्यूअस वेव है, ये तो चलता ही रहेगा ना, ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सो फर्स्ट टाइम मतलब जीरो से लेके लेना है। मैं बताती हूँ सेकंड टाइम में क्या होता है। फर्स्ट टाइम तो समझो पहले, पूरा सेकंड टाइम थर्ड टाइम बताऊंगी तो दिमाग वैसे भी ऐसे ही हो जाएगा, क्या हो रहा है। इज इट क्लियर? सो लिसन टू इट वंस मोर व्हेन यू गेट टाइम। यस आदित्य, आई नो हाउ योर थिंकिंग, तो तुम्हारा थिंकिंग एकदम सही है, वैसा भी जा सकते हैं। यस, वी विल कम टू दैट पार्ट ऑफ योर थिंकिंग। तो आरएमएस से थोड़ा हटके जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले। ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। देखते हैं, देखते हैं कि हु विल आइडेंटिफाई कि मैं क्या फॉर्मूला यूज करूं। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर कॉइल, ये एक स्क्वायर कॉइल है और उसका लेंथ दिया हुआ है हैज 10 सेंटीमीटर्स। सो 10 सेंटीमीटर मतलब 10 इंटू 10⁻²⁻²मीटर्स। 10 टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स 10 है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज 25 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये क्या है? द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 20। ये क्या है? द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज 20, मतलब क्या दिया है? मैक्सिमम इंड्यूस, मैक्सिमम बोला ना, आज मैं बोल रही हूँ ना कि सोते टाइम पहले बोलो। मैम ने बोला जो छोटा ई होता है वो इंस्टैन्टेनियस होता है, ई नॉट है तो मैक्सिमम होता है, और ई आरएमएस है तो रूट मीन स्क्वायर होता है। सो ये ई नॉट दिया है। अब पूछा क्या है? पूछा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछ लिया। कौन सा फॉर्मूला है भाई? कौन सा फॉर्मूला है जो इन सबको कनेक्ट करता है? आपको पता है? बिना आपके पता है मैं कहां से जाऊं? अच्छा, विच फॉर्मूला इज दिस? कौन सा कंडीशन है? कॉइल को क्या हो रहा है? कॉइल गिर रहा है, कॉइल मूव हो रहा है, कॉइल को क्या हो रहा है? सबको वर्डिंग तो पता है ना, सेकेंड लाइन में कॉइल के साथ क्या हो रहा है? कॉइल गिर रहा है, घूम रहा है, क्या कर रहा हो? रोटेट हो रहा है। वेरी गुड, रोटेट हो रहा है तो E इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? बनाओ, साइन थीटा, ये पढ़ लिया था। अब ये यहां पर अगर बनाओ साइन थीटा है, इसका नाम क्या था? ई नॉट। सो इसका मतलब है ई नॉट इज बनाओ। अब हम ओमेगा फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ओमेगा इज ई नॉट डिवाइडेड बाय बैन। सो व्हाट इज W या ओमेगा? इज ई नॉट पता है हमें 20 मिली, इधर 20 इंटू 10⁻³ अपॉन मैग्नेटिक फील्ड 25 इंटू 10⁻³
इनटू एरिया साइड स्क्वायर होता है तो 10⁻⁻1 का -2, नंबर ऑफ टर्न्स 10 है. कैन यू फाइंड, टेल मी विच आंसर? I hope you are getting 8 radians per second. बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, E नॉट इज इक्वल टू बैन ओमेगा. डेटा के हिसाब से कॉइल रोटेट हो रहा है, कॉइल रोटेट हो रहा है तो दिमाग में आना चाहिए इट इज बनाओ साइन थीटा, और पीक वैल्यू दिया है, और पीक वैल्यू E नॉट का फॉर्मूला हमें पता है विच इज बैन ओमेगा. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद इट. ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Okay, before I go to this, I have to tell you something. Are you ready? So I'm going to tell you something and then only we will be doing that. Okay, so as you have done already, do you know leading wave and lagging wave? So we're going to study something for next 5 minutes. I want complete attention. अपना बुक छोड़ दो और ध्यान दो, because this is what is going to help us later in AC also. अगर मैंने एक सिग्नल ऐसे ड्रॉ किया, फिर वही सिग्नल ऐसे ड्रॉ किया, और सेम सिग्नल मैंने थोड़ा ऐसे ड्रॉ किया. तो मैंने आपके सामने 3 सिग्नल ड्रॉ किए. इसमें एक लीडिंग है और एक लैगिंग है. इसमें से एक लीडिंग है और एक लैगिंग है. सो आई विल कॉल इट नंबर्स 1, 2 and 3. कैन एनीबडी टेल मी विच सिग्नल इज लीडिंग एंड विच सिग्नल इज लैगिंग? रेफरेंस हमेशा यहां से शुरू होता है, रेफरेंस हमेशा यहां से शुरू होता है. I can see a lot of people with different answers. Reference is here, 0 is the reference. Reference यहाँ से है, 0 से देखेंगे तो which is leading, which is lagging. सब अपना दिमाग लगाओ. ओके, 2 और 3 में बात चल रहा है. दिस इज लैगिंग एंड दिस इज लीडिंग. करेक्ट है? ये तो 0 से चालू हो रहा है, ओरिजिन 0 से है. So we're talking with respect to 0. This is starting from 0. बट अगर आप ये वेव को देखेंगे, थर्ड वाला, ये तो शुरू हो चुका था, तो ये लीड हो रहा है. दिस इज लीडिंग बिकॉज ये शुरू हो चुका था.
एंड इफ यू लुक एट द सेकेंड वन, ये बाद में चालू हो रहा है, मतलब इट इज लैगिंग. सो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं. 1 के रिस्पेक्ट में 2 जो है लेट चालू हो रहा है, उसका लेट चालू हो रहा है ना, उसका जो ओरिजिन है वो बाद में आ रहा है, इसलिए वो लैगिंग है. और ये वाला जो है वो लीडिंग है. समझ रही है बात? लीडिंग और लैगिंग, आई एम श्योर यू हैव डन. आपने लीडिंग लैगिंग का कंसेप्ट कहीं ना कहीं तो पढ़ा रहेगा. इट इज आइदर लीडिंग और लैगिंग. सो यू शुड नेवर फॉरगेट दिस. नाउ से फॉर एग्जांपल उसको इक्वेशन में कैसे लिखते हैं? whenever I write, now ये मेरे ट्रिक मेथड्स हैं, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा. सपोज आई से E is equal to, मैं आपको डिफरेंशिएट करना सिखा रही हूं. इफ आई से 10 साइन ऑफ 60, okay, pi by, I'll just put it as pi by 3. okay, सेम चीज मैंने अगर ऐसा लिखा, E is equal to 10 साइन पाई बाई 3 प्लस, आपके समझने के लिए लिख रही हूं डिग्री में, सो प्लस 30. और अगर मैंने लिखा E इज इक्वल टू 10 साइन पाई बाई 3 माइनस 30. Now when you look at all the three equations, there is a difference. जिसके पास कुछ नहीं रहता, that means it is starting from origin. इसका मतलब है ये 30 डिग्री पहले चालू हो गया था, यानी कि ये जो डिफरेंस है ना, ये 30 है. और ये वाले का मतलब है ये जो है ना 30 डिले होके चल रहा है, यानी कि यहां से यहां तक का डिले 30 है. समझ में आ रहा है? जब प्लस होता है यहां पर, दैट मींस इट इज लीडिंग. और यहां पर अगर माइनस होता है, इसका मतलब है लैगिंग. गॉट इट? इसको एक दूसरा नाम भी है, फेज शिफ्ट. क्या बोलते हैं? फेज शिफ्ट. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. अब मैं 2 सिग्नल साथ में ड्रॉ कर रही हूं. जब तक समझता नहीं है, यू हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट इट. सपोज मैंने आपको 2 सिग्नल दिया, देखते हैं कौन आंसर करता है. एक ऐसा वाला वेव है और दूसरा वाला मान लेते हैं ऐसा वाला वेव है. सो ये आपका बी वेव है और ये आपका ए वेव है. अब ए और बी में कौन आगे कौन पीछे है? कौन आगे कौन पीछे है? नहीं, अभी आपको कंपेयर करना है. आप ये नहीं बोल सकते ए नॉर्मल है और बी पीछे. आपको ए कैसा लिखेंगे? ए इज अहेड. ए इज अहेड ऑफ बी. लैंग्वेज समझ में आ रहा है? ए इज अहेड ऑफ बी, which is written in physics as A leads B. Crystal clear? A leads B. अब मैंने अगर एंगल पूछ लिया, है दम समझने के लिए. अगर मैंने आपको पूछ लिया कितने से आगे है, तो आप बोलोगे ये भाई 0 में है. ये कितना एंगल था, किसी को याद है लास्ट लेक्चर में? जब मैक्सिमम होता है तो इधर का एंगल कितना होता है? किसको याद है? कितना एंगल होता है? वेरी गुड. द होल क्लास इज सेइंग पाई बाई 2. याद है सबको? पाई बाई 2 था, फिर पाई था, फिर 3 पाई बाई 2 था, फिर 2 पाई था. इसका मतलब है A leads B by pi by 2. Clear? Is it clear? It is very simple. You have to just see where it starts from. जब 2 देते हैं तो और भी आसान है, और 1 अगर 0 से चालू हो रहा है तो और भी आसान है. ओके, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं किसका दिमाग अभी, अगर आपको वो समझा है
So let me see who understands this. ये जो रेड वाला है ये ऐसा स्टार्ट हो रहा है, मतलब जैसे स्टार्ट हो रहा था ऐसे ही है, और ये जो ब्लू वाला है कुछ ऐसे जा रहा है। ये क्या बात हुई? ये आपका ए है और ये आपका ए है और ये आपका बी है। ये कैसी बात हो गई? इसको क्या बोलते रहेंगे? फेज शिफ्ट कैसा है? एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। एक का क्रेस्ट बन रहा है तो दूसरे का ट्रफ बन रहा है, एक का ट्रफ बन रहा है तो दूसरे का ट्रेस बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? क्या हम बोल सकते हैं ये मिरर इमेज बना रहा है? कैन आई से इट्स बिकमिंग अ मिरर इमेज? Yes, it's like a mirror image. So the phase shift here is 180 degree. यहां पर हमारा फेज शिफ्ट वर्ड क्या है? एंगल। जो एंगल है यहां पर, एंगल कितना था? बहुत ही सिंपल था। यहाँ एंगल आई राइट हियर, यहाँ हमारा फेज शिफ्ट या एंगल का जो डिफरेंस है वो हमारा 90 था यहाँ पे, पाई बाई 2। बट यहाँ पे फेज शिफ्ट है 180 डिग्री। ये मिरर इमेज बोलते हैं इसको। इसको कहते हैं मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जब जब दोनों वेव्स के बीच का डिफरेंस 180 होता है तो हम कहते हैं दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहां पर मैंने एक लाइन लिखा है, ए लीड्स बी बाय पाई बाय 2। ए लीड्स बी बाय पाई बाय 2। Can I also write it as? Can I also write it as? You have to tell me correct है कि wrong है. B lags A by pi by 2. क्या हम ऐसा स्टेटमेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल करेक्ट है। देखो तुम मेरे सामने खड़े हो तो मैं बोलूंगी भाई तू मेरे आगे है, ठीक है? तो तुम क्या बोलोगे? हाँ भाई तुम मेरे पीछे हो। बात तो वही है ना भाई, बात तो सेम है कि मैंने कहा तुम मेरे आगे हो क्योंकि मैं अपने रेफरेंस में बता रही हूं, और तुम बोल रहे तुम मेरे पीछे हो, तो दोनों सही है। झगड़ा तो है ही नहीं, टॉपिक इधर झगड़ा करने की बात ही है नहीं। ए बोल रहा है भाई मैं लीड कर रहा हूं, बी बोल रहा है हाँ भाई मैं लैग कर रहा हूं, दोनों बात सही है। सो व्हेन आई से ए लीड्स बी बाय पाई बाय 2, इसका मतलब है बी लैग्स ए बाय पाई बाय 2। डिपेंड्स ऑन हु यू हैव टेकन फर्स्ट। ए के हिसाब से बोल रहे तो बी लैग हो रहा है क्योंकि बी बाद में स्टार्ट हो रहा है। बी के हिसाब से देखा जाए तो ए तो आगे चल रहा है, वो पहले ही स्टार्ट हो गया था, वो ओरिजिन से पहले ही है। गॉट इट? आई वुड लाइक यू टू टेक दिस डाउन। कैन यू टेक द स्लाइड डाउन? यू कैन टेक इट एज अ नोट, you can take it as a note. Do you have a lecture immediately after this? Okay. So in case you have any doubt or anything, you can call me up. There is no problem. Please take the slide down. I want to discuss one more point and then we will wind up. Akhil, you can watch it on YouTube also, no? If you don't get access, you can watch it on YouTube. I think I put it. अरे तुम लोग वीडियो देखते हो, एक लाइक तो दबाओ। इतना कंजूस कब से हो गए यार तुम लोग? एक लाइक बटन भी नहीं दबाते। अभी मैं क्या एडवर्टाइज करूं? प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड आई डोंट नो व्हाट यू वांट मी टू से। एक लाइक बटाने इतना कंजूसी हो जाता है, बाप रे। मुझे अभी डायलॉग मारना पड़ेगा। प्लीज प्रेस द बेल बटन एंड व्हेन आई अपलोड, बेल बटन दबाएंगे तो आपको जैसे ही मैं अपने वीडियोस डालूंगी आपको तभी के तभी पता चल जाएगा। यू वांट मी टू बी टॉकिंग लाइक दोस पीपल ऑन यूट्यूब? प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। दिस इज हाउ दे से इट, आई थिंक। मैं देख रही हूँ 80-90 लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, और इतनी कंजूसी लाइक बटन में। मतलब से यार, एक तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ,
एक तो रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रही हूँ, एक तो करेक्शंस करके वो डाल रही हूँ, कुछ एक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं। कैसे कर, अभी ये भी मैं ही बताऊं श्रेया, ये भी मैं ही बताऊं। मतलब तुमको स्कूल ने क्या सिखाया है? तुमको स्कूल ने सिखाया जैसा बोला जाए वैसे ही बोलो। व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, किसी ने डेफिनेशन लिख दिया। आपको आज मैंने बोला कि लाइक बटाना, तो अच्छा मैम ने बोला है, इसलिए बोलने पर ही करते हो। ये क्या होगा? इज इट ओवर? ओके, 23, 23 कॉपी डाउन करो। ओके, सो विकास हैज, Vikas is telling me to, no, Sachin is telling me to put the link. Okay, डाला है मैंने। Completed, slide 23 is completed। एक और है, एक और केस बताना है। नहीं, ये ओवरलैप हो रहा है। ओवरलैपिंग है, बट एकदम उल्टा ओवरलैप हो रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ। अगर हो गया ये वाला, ओके। सो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल, देखो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है। ये कौन सा वेव होगा, लीडिंग की लैगिंग? क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, कैसा वेव होगा, लीडिंग की लैगिंग? हाँ, तो सबको समझ में आ रहा है कि ये लीडिंग है क्योंकि यह प्लस है, और यहाँ माइनस है तो लैगिंग है। अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। लीडिंग लैगिंग तो समझ में आता है अपने को, अगर पहला वेव 0 से स्टार्ट होता है कि नहीं? अब आप देखेंगे ये जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक +60 पे है, एक -45 पे है। π/6 मतलब क्या है? सॉरी, π/6 मतलब क्या है? 30। और π/4 मतलब क्या है? 45। अब इन दोनों के बीच का उनको क्या चाहिए? फेज डिफरेंस। इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस चाहिए। ट्रिक बताऊं? ट्रिक बताऊं? बहुत सिंपल है। ट्रिक बता रही हूँ, अभी वेव को भूल जाओ, बहुत सिंपल है। एक लाइन ड्रॉ करने का, लाइन ड्रॉ करना आता है सबको? यही तो आता है, लाइन ड्रॉ करना आता है। एवरीवन नोस लाइन। ओके, जब हम इस डायरेक्शन में मूव होते हैं तो इसको हम लीडिंग कहते हैं, और जब हम इस डायरेक्शन में मूव होते हैं उसको लैगिंग कहते हैं। इतना याद कर सकते हैं? जब हम ऐसे जाते तो लीडिंग होता है, यानी कि अगर मैंने ऐसे कहा कि ये एंगल 30 है, इसका मतलब ये लीड हुआ। अगर मैंने कहा कि ये एंगल 45 है, इसका मतलब ये लैग हुआ। सो पीछे जाएंगे तो आई एम श्योर मैथ्स में किया रहेगा आपने, मैथ्स में नहीं किया ये लीडिंग लैगिंग? अच्छा, अभी देखते हैं पहला वाले का एंगल कितना है। पहले वाले का एंगल कितना है? 30 डिग्री लीडिंग प्लस, यानी कि +30 है। ये 30 डिग्री आगे है। सेकंड वाले का एंगल कितना है? -45, यानी कि ये पीछे है बाय 45। हमको पूछा गया है फेज डिफरेंस, मतलब ये एंगल कितना है। हु विल टेल मी द आंसर? हु विल टेल मी द आंसर? समझ में आया सबको? ऑप्शन क्या है? सी है। गॉट इट? क्लियर है? सो अगर हमें सिर्फ एंगल पूछा गया है देन इट इज वेरी इजी, जस्ट ड्रॉ सम दिस थिंग। ऊपर की तरफ लीडिंग होता है, नीचे की तरफ लैगिंग होता है। सपोज आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, सपोज आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, ये ऐसा एक
और फिर एक ऐसा, इसको क्या कहते हैं? ये साथ में शुरू हुए, साथ में खत्म हुए, फिर वापस खत्म हुए, इसको कहते हैं इन फेज। इन फेज यानी कि यहां पर अगर मेरा बी रेड वाला है और मेरा ए ब्लैक वाला है तो हम बोलते हैं ए एंड बी आर इन फेज। तुम दोनों साथ में चल के जा रहे हो तो हम बोलते दे आर गोइंग इन फेज। दो गाड़ियां एकदम सीधे तरह इन फेज। एक थोड़ा आगे गए, ये देखो भगाया उसने, भगाया मतलब लीडिंग, समझ रहे हैं? कोई पीछे से आ रहा है तो लैगिंग, अगर साथ में चल रहे तो इन फेज, समझ रहे हैं? लीडिंग और लैगिंग का एक वर्ड होता है आउट ऑफ फेज। अरे कभी कभी ऐसा होता है ना, अपन आउट ऑफ फेज जाते हैं। अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, बाजू में मम्मी आ गई, मम्मी ने कुछ दे दिया, आप आउट ऑफ फेज चले गए, फिर वापस आते हैं, मैम वापस समझाओ ना, है कि नहीं? आउट ऑफ फेज जाते हैं कि नहीं, है कि नहीं? बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शन आता है, आप आउट ऑफ फेज चले गए, है कि नहीं? फिर अगर आपको मेरा समझ रहा है और आप लिख रहे हैं हाँ मैम समझ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, मतलब आप इन फेज में है, मतलब मेरे साथ आप समझ के चल रहे हैं। बीच में कोई आ गया, ओके, आपको सडनली याद आया, मैसेज आया व्हाट्सएप का, वो चेक करने के इसमें छूट गया जो बोला, तो गया, आउट ऑफ फेज चले गए आप। समझ में आ रहा है आउट ऑफ फेज और इन फेज? यस, वेरी गुड। शौर्यचारी सेज फेज शिफ्ट इज 0, ब्रिलियंट। फेज शिफ्ट 0 होगा क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल डिफरेंस ही नहीं है, तो इन फेज जब रहता है तो हम कहते हैं फेज शिफ्ट इज 0। कोई एंगल डिफरेंस ही नहीं है, तुम मेरे साथ ही चल रहे हो, एंगल का कहाँ लीडिंग लैगिंग आएगा? Is it clear guys? So today's lecture is very important from the concept perspective. हमने RMS value देखा, हमने थोड़ा leading lagging का देखा। मैं चाहती हूँ आप इसको एकदम अच्छे से करें because आज का lecture is a turning point of this chapter. यहाँ से पूरा खेल चेंज होगा और यही चैप्टर नेक्स्ट AC सर्किट्स ऑल्टरनेटिंग करंट का बेस है। तो अगर जिसको ये चैप्टर आता है EMI, उसी को ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, and it is one of the most important chapters. So I hope it is very clear कि EMI में मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, it is the base of alternating current. So this is slide number 24. Bhakti wants 19. So that is it today from me. I hope you have understood. Thank you for joining me, and if you have any doubts, call me immediately after the lecture because that way it is better. Okay, so if you have any doubts or difficulty, you can immediately call me. Otherwise, by tonight, I will upload everything. Okay, so thank you so much for joining me. Take care. Stay safe, everyone. God bless. Bye-bye.